ایک بیرو بیر بھلی کار اواں کے ناظرین سندھ دھرتی ٹی وی جی خاص نشریات جاری ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو جی ورسی جی مناسبت سے شمع مٹھیانی صاحبہ اڳوڻي MP اساں سان گڏ موجود آهن. صبح کا اساں ساتھ تواں سان جاری ہے. مختلف مہمان ہن ٹرانسمیشن میں اساں حصو رہا. انہن محترمہ بے نظیر بھٹو کے لفظن جی جذبن جی احساسن جی بھیٹا پیش کئی. اساں جی گفتگو ان وقت جاری ہے. شمع صاحبہ ظاہر ہے محترمہ کا جو ان کی شہادت ہے اس کے بعد کسی حد تک جو پریشان ہوا وہ ورکر ہوا کہ اب ہمارا کیا ہوگا. ہوتا ہے اس طرح. اور وہ لیڈران سرپرستی پہ اٹھ گئی پریشان, جیسے سرپرستی ختم ہو گئی, سرپرست چلا گیا, اب کیا ہوگا. وہ ایک جو سوال تھا اور وہ جو سوئم تھا بی بی کا, اس دن پھر وہ وصیت سامنے آئی کہ انٹرم پیریڈ کے لیے بی بی صاحب آئی, آصف زرداری صاحب کے سپرد کر گئی ہیں پارٹی. بے شک اس مایوسی کو ختم کرنے میں کتنا جو ہے وہ کردار ہے زرداری صاحب کا, بلاول صاحب کا, عدی کا, کہ انہوں نے پھر وہ جو اگر لوگوں کے ذہنوں میں, ورکرز کے ذہنوں میں یہ اگر پیدا بھی سوال ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا, اب ہماری سرپرستی کون کرے گا, وہ سرپرستی کس حد تک برقرار ہے, قائم ہے. خوش ہیں سب خوش ہیں کہ ظاہر ہے بیچ میں زرداری صاحب کو بھی جیل میں رکھا گیا, ان کے ساتھ بھی تشدد ہوا, زبان بھی کاٹی گئی, ان کے اوپر الزامات بھی آئے, مختلف لوگوں نے مختلف, لیکن انہوں نے کبھی کسی کے لیے کوئی غلط قسم کے الفاظ نہیں. جب وہ رہا ہو کے آئے تھے تو انہوں نے بات کی تھی پاکستان کے, ہم تھے ساتھ موجود, پاکستان کے ایشوز پہ کہ پاکستان کو آنے والے وقت میں کن کن ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وہ سامنے آ رہا ہے, پانی کا ایشو ہے, عورتوں کے لیے آپ نے کیا کیا. تو سب سے پہلے ہم نے جو اسمبلی میں آتے ہی زرداری صاحب نے سائن کیا تھا, اور جو پاور دی گئی تھی 18 امینڈمنٹ کے بعد کہ ہر صوبے کو اتنا پاورفل بنا دو کہ وہ اپنا صوبہ بڑے آرام سے چلا سکتا ہے. اور اس وقت ماشاءاللہ صوبہ سندھ بہت اچھا کام, آپ نے دیکھا میڈیکل میں کتنا کام ہو رہا ہے, جگہ جگہ یونٹس بنے ہوئے. اگر انڈیا کا ویزا کھل جائے تو گمبٹ جو ہے نا اوور لوڈ ہو جائے گا, جس طرح وہاں کام ہو رہا ہے. ابھی بھی ہے, ابھی بھی اوور لوڈڈ ہے, بلاول پورے ملک کا بلاول صاحب کی اور زرداری صاحب کی محنت جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی. جگہ ہر آپ کسی بھی میڈیکل پہ بات کر لیجئے, پانی میں واٹر کرائسس پہ بات کر لیجئے, تو زرداری صاحب نے سب سے پہلے اعلان یہ کیا تھا کہ واٹر کرائسس ہوگا. ہوا نا ہمارے ساتھ, زمینیں ڈوبی, سیلاب آئے, ابھی بھی ہم بہت مشکلات سے گزرے, لیکن جس طرح انہوں نے, جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سب کے بھٹو صاحب کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ کہیں مایوسی نہ ہو ورکرز میں, یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ہم سے بھٹو چھن گئے. بھٹو نہیں چھنا, لوگ روئے, دھاڑے مار مار کے روتے ہیں, ابھی بھی روتے ہیں, لیکن محترمہ کو تو اتنا ٹائم ہی نہیں دیا گیا. ان کے لیے تو اتنی دشمنی کی گئی کہ انہیں ایز اے پرائم منسٹر اپنے لوگ لاغاری جیسے فاروق, اپنے لوگوں نے وہی ان کے بعد وہی سیدھی سی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ آئی تھی پاکستان کو طاقتور بنانے, بھٹو صاحب کا خواب پورا کرنے. اس خواب کو پورا ہونے کے لیے انہیں جان کی قربانی دینی پڑی, لیکن انہوں نے قربانی عوام کے درمیان دی. کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لیڈر اس طرح عوام کے درمیان بھی شہید کیا جا سکتا ہے. اور اس سرزمین میں ہمیشہ لیاقت علی خان کو بھی وہیں پر کیا گیا, محترمہ بے نظیر, ان کو پاکستان سے محبت تھی. وہ اپنا سارا سمجھتے تھے کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کو توڑنے, پاکستان کو چھیننے, پاکستان انٹرنیشنلی لوگوں کی نظر میں ہے. آپ چائنا لے لو, آپ کیوں مدد کر رہے ہیں ہماری, کیوں سی پیک کا بنانے والا آصف علی زرداری صاحب ہے. 18 امینڈمنٹ وومن پروٹیکشن بل کوئی نہیں لایا, زرداری صاحب نے آتے ہی اس کو پاس کروایا. اور اب ایک عورت تھانے میں نہیں, ورنہ کیا کیا نہیں ہوتا تھا تھانے میں عورتوں کے ساتھ, مظلومیت رات بھر پڑی ہوئی ہیں. اب تو تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ویمن پولیس اسٹیشن الگ سے بن گئے, الگ بنائے گئے. پولیس کے اندر اتنے خواتین آئی ہیں, تھانے بڑی جیل میں رینک نہیں تک رہ آئی. سکتی, تھانے میں نہیں رہ سکتی ہے, اس کی فوری طور پہ رہائی کروانی ہے. تو اتنے بڑے بڑے کریڈٹ, اور انشاءاللہ محترمہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ
पूरी सबकी तरफ से मैं कह रही हूँ कि हम वादा करते हैं कि आपके इस मिशन को बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और जो पीछे बैठी हुई हैं अदी फरियाल साहिबा, ये आप ही के मिशन को लेके चल रही हैं, उनसे कोई फ़र्क मिशन नहीं है। पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, हमें कोई मतलब हमारी भुट्टो साहब की आपने तबाह बर्बाद कर दी, इंडस्ट्रीज तबाह बर्बाद कर दी। जो लोग आए यहाँ से चले गए पंजाब, हमारी कॉटन इंडस्ट्री चली गई, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान कराची छोड़ के सिंध छोड़ के, तो उनके जाने के बाद सिंध से भी दुश्मनी की गई। हाँ। सिंध में रहने वाले, सिंध में आने वाले, वो सिंध से दुश्मनी करेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन उसको संभाला गया ना। अब वो सारा ठंडा हुआ है, इंडस्ट्रीज भी आएंगी, नौजवान भी आएंगे, वापस भी आएंगे, और लॉ डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा लॉ बनाया गया, बेनज़ीर ज़ेबिस्ट को किया गया, और इंशाल्लाह आईटी में जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो का जो नौजवान का ख्वाब उन्होंने पूरा करना है कि मैं इनको नौकरियां गवर्नमेंट की ना दें, लेकिन आईटी स्किल्ड करें, उनको स्किल्ड करें, वो स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इतने यूथ सक्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे थे। ये चल रहे हैं ना। ये सारे ख्वाब बेनज़ीर के थे, मोहतरमा के थे। उनको जितना भी हम ट्रिब्यूट देना वो हमारे लिए बहुत कम है, बहुत कम है मोहतरमा के लिए, कि अगर हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और आप जो काम कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं घंटों से बैठे हुए, उस हिस्ट्री को मालूम करना चाह रहा है। बेनज़ीर साहिबा का मैं हाथ पकड़ती थी, मुझे डर भी लगता था, और जब मौका मिलता था तो यहाँ से कहती थी क्या क्या करते हो शमा आप ये। मैंने कहा बीबी आपके अंदर से रेज निकलती हैं पावर की, मैं वो लेती हूँ कि ये पॉलिटिक्स करना औरतें आसान। आज औरत इतनी बोल्ड हो चुकी है सिर्फ मोहतरमा को देख के, कि जब मोहतरमा कुर्बानियों के बाद अपने भाइयों की, अपने बाप की शहादत करने के बाद भी पाकिस्तान के लिए इतना सब कुछ करती, और खुलेआम एक नारा देती हुई निकली कि अब झंडे लगेंगे, अब सवाद भी हमारा होगा, वहाँ से भी दहशतगर्दी ख़त्म होगी, और सरे आम उनको शहीद कर दिया जाता है। एक जगह से बचती है कारसाज से तो उनको वहाँ बुला लिया जाता है, वहाँ पर शहीद कर दिया जाता है। लेकिन शहीद मरते नहीं हैं, आज भी मेरे और आपके दरमियान उनका मिशन मौजूद है। शहीद का मिशन मौजूद होता है। जिस तरह लोग कहते हैं कि शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत यहाँ की आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इसकी सलामती के लिए, इसको इकनॉमिकली साउंड करने के लिए मौजूद हैं। उनके लोग मौजूद हैं, उनकी पूरी तंजीम मौजूद है, उनके चाहने वाले मौजूद हैं, और जो लोग जोख दर जोख दूसरी पार्टियां छोड़ के हमारे अंदर शमूलियत कर रहा है, और हम अपने खुले हाथों से उनको वेलकम करते हैं। खुले, हम ये नहीं डरते हैं कि हमारा हक छीनने आए हैं या हमें हलाक कर देंगे, हम उन्हें वेलकम करते हैं कि आइए। अब तो पीटीआई भी हमारे साथ आने के लिए तैयार है। ज़ाहिर उन्हें पॉलिटिक्स तो करनी है ना, उन्हें भी अपने आप को देखना है, और हर एक के अंदर सियासी शऊर तो है, सियासत तो करनी है। सियासी शऊर अगर किसी के अंदर है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है। इस मुल्क को अगर इस्तेहकाम दे सकती है, कोई और नाम रख ले कोई बात नहीं, हम हमेशा से पीपल्स पार्टी, हमारा नारा था रोटी कपड़ा मकान, अब भी हमारा नारा है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगे, हमने दिया है। उन नंगे पैर लोगों को जूते दिए गए, उन छतों जहाँ पर छत भी नहीं होती थी उनको बेनज़ीर बस्तियाँ बना के दी हैं। इसी बीबी के जाने के बाद बेनज़ीर बस्तियाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, कल भी मैं उसके ऑफिस में गई थी और औरतों का एक जमे का भीड़ लगा था, बैठी हुई थी लाइन से। क्यों? वो सपोर्ट दे रहा है ना, और वो फिर लाइफ टाइम 3 साल तक, जब तक हमारी हुकूमत होती है देते हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। ख़त्म करने वाला कोई हम ऐसा मिशन नहीं देते हैं कि जिसको चंद दिनों के लिए चलाया जाए, इसको ठेका दे दिया, उसको ठेका दे दिया, उसको इस बहाने नवाज दिया। हमारे वो प्रोग्राम हैं जो चलेंगे। अगर हम आईटी यूनिवर्सिटीज़ अब बनाएंगे, बिलावल साहब हमारे मंशूर में है कि आईटीज़ पे जोर दिया जाएगा। हमारा नौजवान सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमारा यूथ सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है हमारा। और बिलावल साहब को इंशाअल्लाह मोहतरमा से वादा है इस 27 दिसंबर पे कि इंशाअल्लाह हम बिलावल भुट्टो को
प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। जरदारी साहब का हाथ एक बाप का हाथ, और अल्लाह ताला का हुक्म है कि बाप की दुआ माँ की दुआ से ज़्यादा कबूल होती है औलाद के लिए। माँ तो हर वक्त ही मांगती है, वो तो सोचती होंगी कि मेरा बेटा और आगे तालीम लेगा, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटी वो करेगी, मैं और इनको पढ़ाऊंगी, मैं आऊँगी। लेकिन आज बिलावल ने साबित किया है, हमारे चेयरमैन ने, कि मैं हूँ, पाकिस्तान को संभालने के लायक हूँ, मुझ पर ट्रस्ट किया जाए। और ये पैगाम उन कुव्वतों को दिया जा रहा है जो नौजवान नस्ल से डर रहे हैं। जब यहाँ पर 65-70% नौजवान नस्ल है, तो वो नादीदा हाथ क्यों डर रहा है? ना डरे ना, अब बहुत हो गया, नई नस्ल को दिया जाए, उसके साथ पुरानी नस्लें तो चलेंगी ना। तो कोई पुरानी नस्ल, असल तो वही है, जड़ तो वही है, ये तो शाखें हैं, इनमें तो फल आना है, इनमें तो फूल खिलने हैं। तो ये शहादत के फूल खिलेंगे और ऐसे रंग के होंगे, और वो भलावल की शक्ल में होंगे कि हम पाकिस्तान संभालें। बहुत शुक्रिया शमा मिठानी साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, अॼो की इन ख़ासि नशरियात में असां ट्रिब्यूट पेश कयो शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो खे। ऐं 16 साल गुज़री विया आहिनि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खे, पर अॼु बि ईअं लॻे थो त उहो ॾुखु, उहो ग़म जेको आहे उहो अॼु बि ताज़ो आहे। ऐं उन ॾुख जी शिदत खे अॼु बि सॼे मुल्क जा माण्हू उन ई नमूने सां महसूसु करे रहिया आहिनि। ॼण त अॼु को ताज़ो इहो वाक़ियो पेश आयो हुजे। ऐं हिन वक़्तु बि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहिड़ी क़दावर शख़्सियत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहिड़ी क़दावर सियासतदान असांजे मुल्क में पैदा न थी सघियो आहे। ऐं इन में को शक कोन्हे त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जंहिं वक़्त में सियासी मैदान में क़दम रखियो, उन वक़्त में हिकिड़ा वॾा चैलेंजिस हुया। हिकु त हुनजे वालिद साहब खे फाही ॾिनी वई हुई, ऐं हिकु त उहो ॾुखु, पर उन ॾुख खे हुन पंहिंजी ताक़त में तब्दील कयो। ऐं आवाम सां जेको ज़ुल्फ़कार भुट्टे जो रिश्तो हुयो उनखे टुटणु न ॾिनो, बल्कि पाण उन रिश्ते खे जारी रखियो ऐं आवाम जे लाइ जेको आहे सो उहे जदोजहद जारी रखी। उन दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे जेल में बि मोकिलियो वियो, जिलावतन थी, पर उनजे बावजूदि हुनजो आवाम सां जेको राब्तो आहे उहो हमेशह बरक़रार रहियो। ऐं ईअं ई उनजो ई नतीजो हुयो जॾहिं 1986 में बेनज़ीर भुट्टो लाहौर में पंहिंजी जलावतनी ख़तमु करे अचे थी, त एतिरा लखें जी तादाद में माण्हू मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो इस्तक़बाल कनि था, जो एतिरा माण्हू अॼु हेॾी वॾी आबादी वधी वञण खां पोइ बि लाहौर वरी न ॾिसी सघियो आहे। उनखां पोइ ॿिया बि केतिरा ई सियासतदान आया आहिनि लाहौर में, उहे हिननि लैंड बि कयो आहे, पर अॼु ताईं उन रिकॉर्ड खे न टोड़े सघियो आहे जहिड़े नमूने सां ई अवाम बेनज़ीर भुट्टो सां प्यारु कंदो हुयो। बेनज़ीर भुट्टो बि मोट में उनखां वधीक अवाम जे लाइ मोहबतनि जा उहे गुल जेके आहिनि से निछावर कंदी रही। खेसि ॿ दफ़ा वज़ीर आज़म थियण जो मौक़ो मिलियो, ऐं उनखे इहो बि एज़ाज़ु हासिलु हुयो त उहा मुस्लिम दुनिया जी सभ खां पहिरीं औरत वज़ीर आज़म हुई। पाकिस्तान जी त हुई, बल्कि सॼी मुस्लमाननि जे जेके बि मुल्क हुया उन में बि पहिरीं औरत वज़ीर आज़म हुई। उन दौरान बि जेको मुख़्तसिर अरसो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे ॿिन्ही हुकूमतनि में मिलियो, खोड़ सारा इदारा जेके ठाहिया, खोड़ सारा प्रोजेक्ट्स जेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शुरू कया, जेके अॼु बि जारी आहिनि। पर उनखां पोइ जॾहिं वरी हुकूमत ख़तमु थी थिए त कुझु ॿिया मुख़ालिफ़ सियासतदान ई वरी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ते केस दाख़िल कनि था, ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे हिकु भेरो ॿीहर जिलावतन थियणो पियो। संदसि जिलावतनी जे दौरान ई पोयां हथरादू जजनि जे ज़रिए खेसि सज़ाऊं बि ॾिनियूं वयूं। ऐं पोइ हिकिड़ी डिघी जिलावतनी खां पोइ 18 अक्टूबर 2007 ते बेनज़ीर साहिबा जॾहिं वापसि अचे थी, खेसि ख़बर हुई त उनजे मथां हमिलो थींदो, खेसि ख़बर हुई त दुश्मन जेको आहे उहो ताक़ में वेठो आहे, पर उन पंहिंजी जान जी परवाह न कई ऐं हुन आमिरियत खे चैलेंज कयो, मुल्क दुश्मननि खे चैलेंज कयो, जमहूरियत दुश्मननि खे चैलेंज कयो ऐं वापसि कराची एयरपोर्ट ते पहुती ऐं कारसाज़ वटि शार फैसल ते संदसि काफ़िले मथां 2 वॾा हिकिड़ा ज़ोरदार ख़ुदकश धमाका थिया। उनजे नतीजे में केतिरनि ई कारकुननि पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾिनो, पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी हुननि हिफ़ाज़त कई। ऐं उनखां पोइ बि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आवाम सां इन थ्रेट बावजूदि, इन एॾे वॾे हमले बावजूदि उहो तालुक़ु न टोड़ियो। ऐं हुन चयो त हुन हिन मुल्क खे बचाइण लाइ आई आहे, हिन अवाम खे महफ़ूज़ करण जे लाइ आई आहे, अवाम जे तरक़ी जे लाइ आई आहे, तंहिं करे हू पंहिंजी जान जी परवाह न कंदी। ऐं ईअं ई 27 दिसंबर 2007 ते रावलपिंडी जे लियाकत बाग में जॾहिं हुन जलसे खे ख़िताब करे हू वापसि वञी रही हुई, त उते ई ताक़ में वेठल दुश्मननि दहशतगर्दनि मथां हमलो कयो, फायरिंग बि थी, बम धमाको थियो, ऐं जंहिंजे नतीजे में किरोड़नि दिलनि ते हुकूमत कंदड़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी वई। ऐं उहो सान्यो न सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी जे कारकुननि लाइ या वरी सिंध जे माण्हुनि लाइ हुयो, पर उहो सॼी
मुल्क जे माण्हुनि लाइ हिकु जेतिरो ॾुख हुयो ऐं उन वक़्त में उहे माण्हू बि अफ़सोस करे रहिया हुया जेके सियासी तौर ते बेनज़ीर भुट्टो जा मुख़ालिफ़ हुया या वरी हू बि पंहिंजे कौल ऐं फ़ैल में पीपल्स पार्टी या बेनज़ीर भुट्टो ते तनक़ीद कंदा हुया, पर मोहतरमा जी शहादत पुॼाणा उन्हनि बि जेको आहे सो उहो ॾुख कयो ऐं उन्हनि खे बि ओतिरो उहो जेको आहे सो ग़म जो अहसासु थियो। सिंध जे माण्हुनि में तमामु घणो ॾुख हुयो ऐं सॼो मुल्क जेको आहे उहो ॿरी रहियो हुयो ऐं उन वक़्त में पीपल्स पार्टी जी क़यादत खुर्दबारी जो मुज़ाहिरो कयो, मुल्क दुश्मन क़ुवतुनि खे हिकिड़ो पैगाम ॾिनो ऐं इहो चयो त पाकिस्तान खपे ऐं पाकिस्तान खपे जे नारे सां ई हेॾे वॾे क्राइसिस मां मुल्क खे कढियो वियो ऐं बेनज़ीर भुट्टो जी उन शहादत जे नतीजे में उन क़ुर्बानी जे नतीजे में 2008 खां हिकिड़ी जमहूरी हुकूमत जो आगाज़ थियो ऐं उन हिकिड़ी आमरियत हुई जेका परवेज़ मुशर्रफ जी उहा पंहिंजे अंजाम ते पहुती ऐं हिन ख़ानदान क़ुर्बानियूं ॾेई जमहूरियत खे बचायो आहे। जमहूरी सियासत जी शुरूआति ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कई ऐं उन जमहूरी सियासत खे आमरियत जे उन ऊंदाही मां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन रोशनी में आंदो उहो जेको ॾीओ जेको ॿरियो जंहिं जमहूरियत खे ऊंदाहे दौर मां कढी रोशनी में आंदो उहो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पंहिंजे खून सां उन ॾीए खे ॿारियो ऐं उहो ॾीओ अॼु बि रोशन आहे। मुल्क में जेसीं ताईं जमहूरियत रहंदी, मुल्क में जेसीं ताईं अवाम जी ॻाल्हि रहंदी, हिन मुल्क में जेसीं ताईं अवाम जी हुकुमरानी जी ॻाल्हि रहंदी, बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा रहंदी, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ज़िंदा रहंदो। अल्लाह हाफ़िज़।